students, this is Vijay Lakshmi. First of all, I welcome you all on my YouTube channel Learn English with Pathfinder Institute of English Language. Till the day I have taught you the complete present tense, past indefinite tense, past continuous tense. And in today's video, I will teach you past perfect tense. Okay students? So in today's video, we will learn the structure, how to frame a sentence. आज हम क्या सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस को कैसे राइट करना है, एंड सेकेंडली वी विल लर्न इट्स यूजेस, वेयर टू यूज इट, इट्स यूजेस. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से. ओके, सो इन द पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज सब्जेक्ट plus had plus past participle or third form of the verb plus object. Okay, subject plus had. Had is the past form of have. Okay, and thereafter we will write the third form of the verb, then object. सबसे पहले हम subject लिखेंगे, उसके बाद had लगाएंगे, फिर third form of the verb लगाएंगे, उसके बाद object. I am going to make a sentence. Okay, for example, she had completed her work before I called him. Before I called her. Now look at the sentence. अब इस सेंटेंस को समझिए. She had completed her work before I called her. Where I use the past perfect tense? Had plus verb, third form. Clear students? So what is the structure of affirmative sentence in the past perfect tense? Subject plus had plus third form of the verb. Okay, then object. Clear students? Okay. Now change the same sentence into negative. अब हम इसी सेंटेंस को इसके नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे. ओके, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमने नॉट कहाँ पे लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, she had not completed her work. Okay, where I put not here? In between the helping verb and the main verb. Had is the helping verb, or we can say auxiliary verb. Okay, and completed is the main verb. इन दोनों के बीच में हमने not लगाया इसको नेगेटिव बनाने के लिए. अब हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे. Now we will change the whole sentence into its interrogative form. Now you are very well known to how to make the sentence negative and interrogative. Okay, अब आप सबको अच्छे से जान चुके हो कि कैसे किसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. तो बताओ कि इसको इंट्रोगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब had. Had she completed her work? At the last, sign of interrogation. Okay students, so I thought this is clear to you. Okay, now let's proceed towards its uses. अब हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल, हमने इसका यूज कब करना है. हमने इस टेंस का, मैंने पहले से ही इसके जितने यूजेस हैं वो लिख दिए हैं, ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, और सेकेंडली आप इसको राइट कर सको. Okay, so the first uses is to denote an action that got completed before another action took place in the past. Okay, past में दो actions हुए, past में दो action हुए, उन दोनों में से जो action पहले हुआ वहां पे हम कौन सा tense यूज करेंगे? past perfect tense. Clear?
और जो काम बाद में हुआ वहां पे सिंपल पास्ट। आई गेव यू वन एग्जाम्पल। व्हेन आई रीच्ड the station, this is a very common example, even our teacher gave the same example to us। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हमारे टीचर्स ने भी हमें यही एग्जाम्पल देके समझाया था। When I reached the station, the train had left। Now analyze this example, इस एग्जाम्पल को समझिए आप। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। ओके, तो कौन सा काम पहले हुआ? आप स्टेशन पहले गए या गाड़ी पहले जा चुकी थी? गाड़ी पहले जा चुकी थी। जैसे ही आप स्टेशन पे गए आपको पता चला कि गाड़ी तो चली गई, तो मीन टू से पहले कौन सा एक्शन हुआ? दिस वन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। सो पास्ट में दो एक्शन हुए, आप स्टेशन गए और गाड़ी चली गई। कौन सा एक्शन पहले हुआ? वहां पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। जो एक्शन बाद में हुआ वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट, टू डिनोट द एक्शन दैट अकर्ड लेटर, देयर वी विल यूज सिंपल पास्ट। एंड द एक्शन दैट कंप्लीटेड फर्स्ट, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। Okay, we can take another example too। I had locked all the rooms before I went out। Okay, I had locked all the room before I went out। सपोज करो कि आप मार्केट जा रहे हो। जब आप मार्केट जाते हो तो घर खुला छोड़ के नहीं ना जाते, हम सभी रूम, सभी जो गेट है, मेन गेट है, उसको लॉक करके जाते हैं। तो आप ये बताओ कि पहले आप बाजार चले जाते हो या पहले डोर को लॉक करते हो फिर बाजार जाते हो? पहले हम घर को लॉक करते हैं, उसके बाद घर से बाहर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? आई हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स, मैंने सभी ताले, सभी कमरों को ताला लगा दिया था बाहर जाने से पहले। तो कौन सा काम पहले हुआ? मैंने लॉक लगाया। ओके, सो हियर आई हैव यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना आपको कि जो एक्शन पहले हुआ, पास्ट में दोनों एक्शन हुए। देखो, घर बाहर जाने से पहले मैंने सभी रूम्स को ताला लगा दिया था, पास्ट की बात हो रही है। जो काम पहले हुआ वहां पे पास्ट परफेक्ट, और जो काम उसके बाद हुआ वहां पे सिंपल पास्ट। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स सेकंड यूजेस। इसका सेकंड यूजेस क्या है? एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, और वी कैन से अनरियल और इमेजिनरी पास्ट। क्लियर? जो आपका अनफुलफिल्ड था, पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड नोन you were ill, I would have come to you। अब इस सेंटेंस को समझिए। इफ आई हैड नोन यू वर इल, अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार हो, आई वुड हैव कम टू यू, तो मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाता। ओके, सिंपल एग्जाम्पल वी कैन टेक। इफ आई हैड मनी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताऊंगी। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प यू।
अब आप ये सोचोगे कि मैम ने तो यहाँ पे 2 हैड लगा दिए कि यहाँ पे कि यहाँ पे। बेटा ये जो हैड है ये तो एक्सिलरी वर्ब है, पास्ट परफेक्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड, और यहाँ पे हैड क्या है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। हैव, हैड, हैड वर्ब की फॉर्म्स होती है ना 3। ओके, वन थिंग मोर दैट आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल, एक बात जो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ वो क्या है कि बेटा इफ यू वांट टू बी गुड एट टेंसेज, अगर आपको टेंसेज में अच्छे होना है, परफेक्ट होना है, देन यू मस्ट बी गुड एट वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यू मस्ट लर्न। ओके, आपको वर्ब की फॉर्म्स जितनी हो सके उतनी याद करनी चाहिए। क्लियर? सो इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प कर देता। लेकिन ये अनरियल पास्ट है क्योंकि मेरे पास पास्ट में पैसे नहीं थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंसेस with the verbs like expect, hope, suppose, intend, want, we wish, where we wish to do something but did not do। जब हमारे पास verbs हो like कैसे, कौन सी verbs हो, expect हो, hope हो, suppose हो, intend हो, want हो। ओके, जहाँ पे हम कुछ करने की इच्छा कर रहे थे लेकिन वो किया नहीं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, I had wished to win the competition। मैंने विश किया था, ये मेरी इच्छा थी, मैंने ये इच्छा की थी कि मैं टू विश द कॉम्पिटिशन, कि मैं कंपटीशन जीत जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। आई हैड विश टू विन द कॉम्पिटिशन, मैंने इच्छा की थी कि मैं इस कॉम्पिटिशन में जीतूं, लेकिन मैं नहीं जीता। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट यूज एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टेड, इन द रिपोर्टेड स्पीच, मीन टू से इन द इनडायरेक्ट स्पीच। In the coming videos, I will teach you narrations and reported speech also। आने वाली वीडियोस में मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच भी सिखाऊंगी, और भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के वो हम सब करेंगे एक एक करके। सो टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू गेट नॉलेज ऑफ ऑल द इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स, इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स के और भी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको जानने के लिए यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्लियर? द लास्ट यूजेस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच। आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस। He said to me, comma, invited commas begin, I have completed my work। बेटा दिस स्पीच इज डायरेक्ट स्पीच। ये कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जैसा किसी ने कहा वैसे की वैसे उसको आगे बोल देना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ये सारी क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच, we have to use the past perfect in the indirect speech। indirect speech, अगर आपको थोड़े से भी नरेशन किए हुए हैं, थोड़े से याद हैं, तो हम कैसे चेंज करते हैं इसको? he told me, said to is changed into told, he told me that he, अब यहाँ पे have है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट इनडायरेक्ट में किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। he had completed his work। क्लियर? तो हमने जो पास्ट परफेक्ट का यूज करना है वो रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। क्लियर?
जो इनडायरेक्ट स्पीच है, जो हमने चेंजेस करके बोली है, उसमें हमने पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, लेकिन हर टाइम नहीं करना, अकॉर्डिंग टू द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। ये जो कॉमास के विद इन स्पीच होती है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। और ये चेंज कब आएगा? अगर जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में होगी। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है सेड टू सेड, ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है और इस पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, अब से सेड क्या है? इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से, तो पास्ट ही हुआ ना। रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज आएगा। अगर यहाँ पे सेज होता तब यहाँ पे हैड नहीं होगा। ओके, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है देन ओनली रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। और हमने हैड ऐसे नहीं लगा देना, हमें देखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए या फिर सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनेगा। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। My friend said to me, comma, inverted commas begin, I bought a new car. क्लियर? अब पहले इसमें देखो रिपोर्टेड वर्ब क्या है? said है। क्लियर? ये पास्ट है ना? पास्ट क्यों है? क्योंकि ये से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट में हुआ। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो जब कॉमास के बीच में जो सेंटेंस लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसके टेंस में चेंज आएगा। क्लियर? अब इसमें क्या चेंज आएगा? माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट as per the rule I will be changed according to subject. He bought. Bought is the second form of buy. Okay, तो ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट हो रिपोर्टेड स्पीच में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? He have bought a new car. Okay students, have you understood today's lesson? So I hope that you all are getting whatever I am teaching you, कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ आप अच्छे से उसको ग्रैस्प कर रहे हो, सीख रहे हो। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए इसी चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।